اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فارسی گرامر پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اپنے 5ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ ہم فارسی گرامر میں جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے فارسی قاعدہ، اور فارسی قاعدے میں فارسی قاعدے کی ابتدا میں ہم نظم پڑھ رہے تھے، جس نظم کے اندر مصنف نے تمام اشعار کے اندر مکمل گرامر کو بیان کر دیا ہے۔ جو ماں بعد کتاب میں آنے والا تھا، جتنے بھی قواعد، اس کو ایک جامع شکل میں اشعار کی صورت میں ایک نظم کے اندر ان تمام اور ساری کی ساری گرامر کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو 20 اشعار ہم پڑھ چکے ہیں اور باقی 4 اشعار رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ نہایت آسان، آپ توجہ سے سماعت کیجئے۔ آج کا پہلا اور مجموعی طور پر 21واں شعر ہے۔ آج 21واں شعر ہے۔ بے کے بدلے، آپ توجہ سے اسکرین کے اوپر دیکھیں، بے کے بدلے امر پر گر میم ہو، بے کے بدلے امر پر گر میم ہو، نہیں بن جاتی ہے سن اے نیک ہو۔ امر پر، بے کے بدلے امر پر گر میم ہو، نہیں بن جاتی ہے سن اے نیک ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے پڑھا تھا بر بے بر، اسی طرح بے شکن شکن، بو گزر گزر، یعنی بے بر امر پڑھا آپ نے، بے شکن امر کا صیغہ پڑھا آپ نے، بو گزر امر کا صیغہ پڑھا آپ نے۔ کہتے ہیں کہ اس بے کے بدلے امر پر گر میم ہو، اگر بے کے بدلے میم ہو تو یہ کیا بنے گا؟ نہیں بن جاتی ہے۔ یعنی بہت آسان قاعدہ ہے فعل نہیں بنانے کا، اور چونکہ یہ تو ضروری ہے، امر کے نہیں کے شروع میں میم کا آنا یہ لازمی قاعدہ ہے، جبکہ فعل امر کے شروع میں با کا آ جانا یہ لازم نہیں، وہ لازم نہیں، جبکہ نہیں کے شروع میں میم کا آنا یہ لازم ہے۔ تو امر کے شروع میں میم لگائیں، فعل امر کا جو بھی صیغہ ہو، اگر با زائدہ ہے تو اس کی بجائے میم لگا دے، اگر با زائدہ نہ ہو تو پھر اس صیغہ کے شروع میں میم لگا دے، اور اگر با ہو تو با کو میم سے بدل دے، تو یہ فعل نہیں کا صیغہ بن جائے گا۔ جیسے بے بر سے مبر، بے شکن سے مشکن مشکن، اسی طرح بو گزر سے مگزر یا مگزر۔ تو یہ با کے بدلے ہم امر پر میم لگا دیں تو یہ فعل نہیں کا صیغہ بن جائے گا۔ چلتے ہیں آج کے دوسرے شعر کی طرف، اور مجموعی طور پر ہمارا 20واں شعر ہوگا۔ اسم فاعل کا بنانا ہو اگر، اسم فاعل کا بنانا ہو اگر، امر پر لفظ ندا ایجاد کر، امر پر لفظ ندا ایجاد کر۔ اب اس شعر کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ اسم فاعل کا بنانا ہو اگر، یعنی اسم فاعل کا صیغہ بنانا ہو، اسم فاعل کا اگر صیغہ بنانا ہو تو کیا کرو؟ امر پر لفظ ندا، نون دال ہا، لفظ ندا ایجاد، اور ایجاد کا معنی ہوتا ہے زیادہ کرنا، ایجاد کا معنی زیادہ کرنا یا اضافہ کرنا، یہ ایجاد کا معنی ہے۔ امر کے آخر میں ندا ایجاد یعنی زیادہ کریں گے یا ندا لگائیں گے تو یہ اس میں فاعل کا
सीगा बन जाएगा। जैसे हम इसकी मिसालें ले लेते हैं। शुनीदन से मसदर आता है, शुनीदन मसदर से मुदारे आता है शुनवद, शुनवद से अम्र आएगा शुनो या बिशनो। शुनो के आखिर में निदा इजाद करें, निदा को ज़्यादा करें तो क्या बनेगा? शुनिंदा, शुनविंदा, शुनविंदा, शुनो है शुनविंदा, तो शुनविंदा का माना हो जाएगा सुनने वाला। इसी तरह नविश्तन लिखना, इसे नवीसद मुजारे था, नवीसद, नवीसद से अम्र क्या बनेगा? नवीस, नवीसद से फ़िल अम्र का सीगा बनेगा नवीस। तो नवीस के आखिर में आप निदा ज़्यादा करें तो ये बनेगा नवीसिंदा, नवीसिंदा। तो नवीसिंदा का माना होगा लिखने वाला। इसी तरह खानदन मसदर पढ़ना, इससे खानद मुजारे आता है, खानद, तो इससे अम्र का सीगा क्या आएगा? खान, खा वाव अलिफ नून, खान। तो इसके आखिर में निदा ज़्यादा करेंगे तो ये बनेगा खानिंदा, खानिंदा। तो खानिंदा का माना होगा पढ़ने वाला, पढ़ने वाला। खानिंदा का माना पढ़ने वाला। इसी तरह आपको मैं मशहूर मिसालें दे देता हूँ जो हमारी आम ज़ुबान में लफ्ज़ बोले भी जाते हैं। मसलन चरीदन मसर है, चरीदन, चरीदन का माना होता है चरने, चरीदन का माना चरना, चरीदन चरना। चरद मुजारे आता है, शे रा और दाल, चरद। चरद से हम चरद, चरंद, चरी, यह मुजारे वाहिद हाजिर का सीगा है। इसके आखिर से या को दूर करें तो क्या रह जाएगा? चर, चर, ये फ़िल अमर बन जाएगा। और इसके आखिर में निदा ज़्यादा करें तो क्या बनेगा? चरिंदा, चरिंदा का माना होगा चरने वाला, चरिंदा का माना होगा चरने वाला। इसी तरह परीदन मसदर है, परीदन, परीदन का माना होता है उड़ना और इससे मुजारे आता है परद। तो मुजारे की गर्दान करें परद, परंद, परी। परी के आखिर से या को दूर करें तो फ़िल अमर का सीगा बनेगा पर। तो ये अमर के आखिर में निदा को बढ़ाएं तो क्या बनेगा? परिंदा। तो परिंदा का माना क्या बनेगा? उड़ने वाला, परिंदा उड़ने वाला। इसी तरह खोरिंदा, खाने वाला। इसी तरह नौशिंदा, नौशिंदा का माना बनेगा पीने वाला। तो इस तरह जब हम आगे मज़ीद मसादर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, बहुत ज़्यादा अल्फाज ऐसे आएंगे जो आप रोज़मर्रा अपनी ज़ुबान में सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन आपको कामिल इदराक न था इन अल्फाज का। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप ये पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि ये असल में क्या सीगा है और ये कहाँ से बना है। तो चलते हैं आज के चौथे शेर की तरफ। कहते हैं हाय हवज़ माजी मुतलक पे ला, हाय हवज़ माजी मुतलक पे ला, इसमें मफ़ऊल इस तरह बन जाएगा। हाय हवज़ माजी मुतलक पे ला, इसमें मफ़ऊल इस तरह बन जाएगा। हाय हवज़ कहते हैं वो गोल हा, आपने अक्सर अल्फाज के साथ देखा होगा गोल हा, जैसे वगैरह, इसके आखिर में वगैरह के आखिर में गोल हा आती है। इस तरह मुख्तलिफ लफ्ज़ों में गोल हा का इस्तेमाल होता है, इसको हाय हवज़ कहते हैं। तो कहते हैं हाय हवज़ माजी मुतलक पे ला, तो माजी मुतलक पे ला के देखते हैं। परवर्दन पालना से परवर्द, ये माजी है, इसके आखिर में हाय हवज़ लाएँ, हा को लाएँ तो क्या बनेगा? परवर्दा। तो ये इसमें मफ़ूल का सीगा बन जाएगा परवर्दा। परवर्दा का माना पाला हुआ, परवर्दा पाला हुआ। इसी तरह शुनीदन सुनना, शुनीदन से माजी मुतलक बनाएं शुनीद, तो शुनीद इस माजी मुतलक के आखिर में हाय हवज़ का इजाफ़ा करें तो बनेगा
शुनीदा, शुनीदा का माना होगा सुना हुआ। गुफ्तन कहना से माजी मुतलक बनेगी गुफ्त, तो गुफ्त के आखिर में यानी माजी मुतलक के आखिर में हाय हवस को लेके आए तो बनेगा गुफ्ता। गुफ्ता का माना होता है कहा हुआ। इसी तरह खानदन पढ़ना, इससे माजी मुतलक आएगा खांद, तो इसके आखिर में हाय हवस लाएं तो बनेगा खानदा। खानदा का माना पढ़ा हुआ। इसी तरह ला हज़ल क़ियास आप मुख्तलिफ़ मिसालें आप ख़ुद भी बना सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आखिर में मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि इन ज़रूरी कायदों को याद रख, इन ज़रूरी कायदों को याद रख और खुदा की याद से दिल शाद रख, और खुदा की याद से दिल शाद रख। तो इन ज़रूरी कायदों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, फ़ारसी समझना चाहते हैं, फ़ारसी ग्रामर को सीखना चाहते हैं, इसको याद रखना चाहते हैं और आगे मज़ीद कुतब आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मुसन्निफ़ ने तलबा को कहा कि अल्लाह की याद से एक तो अपना दिल शाद रखो और दूसरा इन ज़रूरी कवायद को याद रखो। इन ज़रूरी कायदों को याद कर और खुदा की याद से दिल शाद कर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफ़ी अता फ़रमाए और ऐसा इल्म अता फ़रमाए जो हमारे लिए सूदमंद हो, और ऐसे इल्म से हम अल्लाह की पनाह लेते हैं जिससे तकब्बुर और किबर पैदा हो और उजब और ख़ुद पसंदी आए, और जिस इल्म के साथ बंदा दूसरों को हकीर जाने या मुनाजरा मुजादला करे, तो ऐसे इल्म से अल्लाह की पनाह में आते हैं। तो अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में, उम्र में इजाफ़ा फ़रमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले नए लेक्चर में हम हाज़िर होते हैं इस्तिलाहात पढ़ने के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।